اور یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نماز کے فرائض کے حوالے سے بیان ہو رہا تھا، اور نماز کا پانچواں فرض سجدہ، جس کی ہم کل بات کر رہے تھے کہ نماز کا پانچواں فرض سجدہ ہے، اور اس سجدے میں 8 چیزوں کا زمین پر جم کر لگ جانا یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 8 چیزوں کا زمین پر لگنا، جم جانا، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ سجدے میں ایک پیشانی، ایک ناک، اور دونوں ہاتھوں کا، دونوں گھٹنوں کا اور دونوں پاؤں کا، ان پنجوں کا زمین پر جم کر لگنا اسے سجدہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کی حقیقت جو ہم نے کل بیان کی تھی کہ سجدہ کتنی عظمت اور شان والا ہے، اس لحاظ سے سجدے کے حوالے سے جو اگلا مسئلہ بیان ہوا کہ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا شرط ہے، یعنی فرض ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو اس شخص کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اگر صرف انگلیوں کی نوک زمین سے لگی تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ توجہ طلب مسئلہ ہے جو اکثر اوقات جو ہے وہ غیر توجہ کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ درپیش آتا ہے، اور اکثر لوگوں کی نماز اس وجہ سے خراب ہوتی ہے کہ وہ سجدہ ٹھیک انداز میں نہیں کرتے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے پچھلے دونوں پاؤں کو زمین سے یا اٹھا دیتے ہیں، یا صرف نوک زمین پر لگی ہوتی ہے، یا پاؤں مڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ نماز اس طرح نہیں ہوتی۔ زمین پر پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ شرط ہے، یہ فرض ہے کہ ہم اس انگلی کا، جسے یہ پیٹ کہا جاتا ہے، پاؤں کی ایک انگوٹھے کا یہ پیٹ لگنا یہ فرض ہے زمین پر۔ اور اسی طرح سے سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا یہ سنت ہے، اور جو ہے وہ پاؤں کی کم سے کم ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا زمین پر لگ جانا یہ واجب ہے۔ کتنی انگلیاں؟ 3 انگلیوں کا زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ اگر اس سے کم لگی، 1 انگلی کا لگنا فرض ہے اور 3 کا لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا لگنا یہ سنت ہے۔ لہذا اگر کسی کے پاؤں سجدے میں جاتے ہوئے پیچھے سے پاؤں اٹھ گئے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت ہوگا اور کہ جب انسان توجہ سے اور اطمینان سے نماز پڑھے گا۔ جب جلدی جلدی نماز پڑھے گا تو نہ اس کا ہاتھ لگے گا، نہ پاؤں لگے گا، نہ ایک پیٹ لگے گا انگلی کا، نہ 2 لگیں گے۔ یہ اس صورت میں لگے گا، اس کو جب آپ سجدے میں جا کر زور دیں گے پاؤں کی انگلیوں کا تو اسے پیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ پاؤں کی انگلیوں کے یہ پیٹ ہیں، ان میں سے 1 کا لگنا فرض ہے، 3 کا لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا لگانا یہ سنت ہے۔ اور کوشش کیجئے 10 کی لگے، 10 نہیں لگتی تو کم سے کم 3 کا زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ اس سے کم نہ لگے، یہ سجدے کی حقیقت ہے۔ اگر اس سے کم انگلی پیٹ کے جو ہے نا وہ زمین پر لگتی ہے تو سمجھ لو سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ توجہ کی بات ہے کہ جب ہم توجہ سے زمین پر سجدہ کریں گے تو اپنے پچھلے پاؤں کی جو ہے نا 1 انگوٹھے کی پیٹ کا لگنا فرض، 3 انگلیوں کا لگنا یہ واجب، اور پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ کو زمین پر جما کے لگا دینا یہ سنت ہے، اور اس انداز میں سجدہ کیا جائے۔ لہذا سجدے میں 10 انگلیوں کا قیام جو ہے نا وہ
रुख किस तरफ हो, रुख उस तरफ होगा जब होगा किबले की तरफ। इन उंगलियों का रुख किधर हो, किबले की तरफ होना। ये सजदे में 10 उंगलियों का किबला रुख होना ये फ़र्ज़ है। उस टाइम ये फ़र्ज़ अदा होगा जब ये पाँव ज़मीन पर टिकेंगे। अगर ज़मीन से उठे हुए हवा में तो नमाज ही नहीं हुई। तो जब आपका जो है ना वो पाँव ही सही नहीं टिका तो किबला रुख कैसे होगा। तो लिहाजा ये उंगलियां जब सही जम जाएंगी और उस अंदाज में जमेंगी तो फिर जाके आपका ये सजदा होगा। और इसका किबला रुख होना ये उंगलियों का भी ये फ़र्ज़ है। एक सजदे के बाद फ़ौरन दूसरा सजदा वाजिब है, यानी दोनों सजदों के दरमियान कोई और रुकन ना हो, कोई और काम ना किया जाए। दोनों सजदों के दरमियान कोई और काम ना किया जाए। एक सजदे के बाद दूसरा सजदा ये किया जाए। और एक रकत में 2 ही सजदे करना और 2 से ज़्यादा जो है ना सजदे ना करना ये वाजिब है। हर रकत में सिर्फ 2 सजदे करना, इससे ज़्यादा करना ये सही नहीं है। वाजिब कितने, 2 सजदे वाजिब हैं। और सजदे में कम अज़ कम 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के वक़्त इतनी मिक़दार तक ठहरना ये वाजिब है। सजदे के अंदर इतना रुकना कि 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कह लिया जाए ये वाजिब है। सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बी यल आला कहना ये सुन्नत है। 3 मरतबा कहना सुन्नत है। 3 मरतबा से कम कहने से सुन्नत अदा नहीं होगी। और ज़्यादा अच्छा क्या है, मुस्तहब है कि अगर आप 5 मरतबा कह दें। और दोनों सजदों के दरमियान यानी जलसा जिसे कहते हैं, एक सजदा करके इंसान अपना सर नमाजी उठाता है और सीधा होकर बैठता है, इसे क्या कहते हैं जी, इसे जलसा कहते हैं। यानी दोनों के दरमियान जो है ना बैठना, इसे जलसा कहते हैं। एक सजदा किया फिर दूसरे के लिए उठा सर और सीधा पीठ को सीधी करके बैठना, इसे जलसा कहते हैं। और इस जलसे के में जो है ना वो कितनी मिकदार हो बैठना, एक सजदे से दूसरे सजदे में कितना फ़र्क करना, जितना सुबहान अल्लाह कह लिया जाए। ये उस वक़्त होगा जब हम तसल्ली से नमाज पढ़ेंगे। जब वो सीधा सीधा ऐसे ही कर लिया तो ना एक हुआ तो ना दूसरा हुआ। लिहाजा ये जो है ना नमाज अल्लाह की इबादत है और अल्लाह की तरफ रुजू करके उसकी तरफ तवज्जो करके, तो तवज्जो जो है ना वो अल्लाह की तरफ हो तो फिर जाके ये सजदा होगा। लेकिन अगर ख्याल दूसरा हो, काम दूसरे ज़्यादा हो तो फिर सजदे पर सजदा किया जाए तो फिर वो जो मिसाल जो हुज़ूर ने अता फरमाई हज़रत अबू हुरैरा की, जो मैंने आपको 2 मरतबा वो हदीस पाक सुनाई थी ना कि इस तरह जो है ना वो सजदा ना करो, ठुंगे ना मारो। लिहाजा जलसे में कम अज़ कम जो है वो 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की कदर ठहरना ये क्या है, वाजिब है। ये क्या है, वाजिब है। और अगर वाजिब छूट जाए तो सजदा साहब लाजम आता है। लिहाजा इत्मीनान और तसल्ली से एक सजदा, फिर उसके बाद जलसे में सीधा होके बैठ जाना और इतनी देर बैठना जितनी देर सुबहान अल्लाह कह लिया जाए, फिर दूसरे सजदे की तरफ जाना ये वाजिब है। सजदे में जाने के लिए और सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना ये सुन्नत है। और दोनों सजदों के दरमियान जलसा करना यानी सीधा बैठना ये वाजिब है। इसी तरह से मर्द के लिए जलसे का सुन्नत तरीका ये है कि जो है ना वो बायां कदम बिछाकर और इस पर बैठे और दायां पाँव खड़ा रखे और पाँव की उंगलियां क़िबला रू हों और दोनों हथेलियां को रानों पर रखे और उंगलियों को अपनी असली हालत पर छोड़ दिया जाए, ना जोड़ा जाए ना ही बहुत खोला जाए, बल्कि आम नॉर्मल हालत पर इन्हें अपनी जो है ना वो रानों पर छोड़ दिया जाए। और यानी हाथों की उंगलियां ना खुली रखे और ना मिली हुई रखे और घुटनों को उंगलियों से ना पकड़े, ऐसे करके ना बैठे, ऐसे करके पीछे करके बैठे, ऐसे करके अपनी उंगलियां इन घुटनों को ना पकड़े, ऐसे नॉर्मल हालत में इन्हें रख दिया जाए।
और इसी तरह से औरत के लिए जलसे का सुन्नत तरीका ये है कि दोनों पाँव दाएं तरफ निकाल दे और बाईं सोरीन के बल ज़मीन पर बैठ जाए और सजदे में जाते वक़्त ज़मीन पर पहले घुटने लगेंगे, फिर हाथ और फिर नाक और फिर पेशानी। सजदे में जाते हुए पहले क्या लगेंगे? घुटने लगेंगे, फिर हाथ रखे जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा? फिर पेशानी लगेगी और फिर नाक लगेगी। ये है सही तरीका सजदा करने का। सजदे में जाते वक़्त ज़मीन पर पहले घुटने रखना, फिर हाथ, फिर नाक और पेशानी का रखना और सजदे से उठते वक़्त इसके बरअक्स करना, यानी पेशानी पहले उठाए, फिर नाक उठाए, फिर हाथ उठाए और फिर घुटने उठाकर सीधा खड़ा हो जाए। ये है सजदे की हकीकत। इसी तरह से मर्द के लिए सुन्नत है कि सजदे में बाजों को जो है ना वो करवटों से जुदा रखे और पेट रानों से जुदा रखे और सजदे में कलाइयाँ और कोहनियाँ ज़मीन पर न बिछाए बल्कि हथेली को ज़मीन पर रख कर कोहनियाँ ऊपर उठाए रखे। यानी सजदे में जाते हुए ऐसे इसको जोड़ना भी नहीं, कलाइयों को ये खुली रखनी है। और इसी तरह से सजदे में जाने के बाद इस हाथ को सजदे की जगह रखना है, ना ये हिस्सा और ना ये कोहनी ये ज़मीन पर नहीं लगनी चाहिए, बल्कि सिर्फ हाथ ज़मीन पर सजदे की हालत में लगने चाहिए। और इस तरह से ये है सजदा और इसके तरीक़ाकार यही है। लिहाजा औरत के लिए सुन्नत ये है कि वो सिमट कर सजदा करे, यानी बाजों को करवट से जो है ना पेट को रानों से, रान को पिंडलियों से और पिंडलियाँ ज़मीन से मिला दे, कोहनियाँ और कलाइयाँ ज़मीन पर बिछा दे। ये है औरत का सजदा। अल्लाह ताला हमें सही मानों में नमाज के मसाइल